Welcome to CG School online classes, and in 12th business studies we shall discuss fourth lesson, and the topic will be limitations of planning. So let's discuss them without wasting time. The first limitation, demerit, we also can see. Drawbacks we also can see. Limitations, drawbacks, demerits एक ही बात है. Disadvantages also. Disadvantages of planning. So the first limitation is planning leads to rigidity. Once plan is implemented, it's not easy to make any change in that plan. Small changes may be there, but big changes are neither possible nor in the interest of organization. छोटे मोटे चेंज तो किए जा सकते हैं बट कोई बड़ा चेंज ना तो उसमें प्लान में पॉसिबल होगा और ना ही इंटरेस्ट में होगा ऑर्गेनाइजेशन के में. सो जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट कर देती है. उसको फॉलो करने के लिए हम बंध जाते हैं. प्लानिंग फोर्स टू फॉलो द प्लान्स ब्लाइंडली. सो it is due to rigidity. There is a lack of changing in any plan or planning. So let's discuss it. Planning is done for future के लिए की जाती है. Once plans are made and implemented, managers may not change them. तो एक बार implement कर दिए, बना दिए, managers उनको change नहीं कर पाते. Small changes are possible, but big changes are neither possible nor in the interest of organization. छोटे मोटे चेंज हो सकते हैं, बट बड़े चेंज ना तो पॉसिबल है ना ही इंटरेस्ट में होते हैं अगर किए भी जाए तो. सो रिजिडिटी इन प्लानिंग क्रिएट डिफिकल्टी. तो ये जो रिजिडिटी है, चेंज नहीं उसमें हम कुछ कर सकते प्लान में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार. सेकेंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. As we know, business environment is dynamic, changes are frequently there, and planning in that case does not work. If environment is dynamic environment, changes are very fast and rapidly changes are there, then planning में fail हो सकती है. planning dynamic environment में planning काम नहीं करती. business environment is very dynamic. It's very difficult to forecast future changes in business environment. चेंजेस को फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. प्लान्स में फेल इफ चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट. जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हो तो जो हमारे प्लान्स हैं या प्लानिंग है वो फेल हो सकती है. तो ये हो गया कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती, ये कमी हो गई. थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. वंस प्लान्स आर मेड, मैनेजर्स बिकम्स द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ प्लान. वंस प्लान्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, देन मैनेजर्स बिकम्स blind follower of those plans. They apply ready-made plans year to year. They don't show their creativity. They don't show their talent in framing new plans, new ideas, methods, etc. They use old plans as it is. So it reduces creativity of managers. So let's discuss more. Generally, managers become the blind followers of plan. They don't take any step to make any change in plan according to changes of business environment. तो कोई स्टेप नहीं लेते environment के अकॉर्डिंग कोई चेंज करने का प्लान में. They don't show their creativity and skills to develop new ideas and method. अपनी क्रिएटिविटी दिखाना वो छोड़ देते हैं. As it is प्लान वो अप्लाई करते रहते हैं. They become lazy while following ready-made plan. Ready-made plan फॉलो करते करते वो लेजी बन जाते हैं. So planning reduces the creativity and talent of managers. सीधी सी बात है, प्लानिंग क्रिएटिविटी कम कर देती है, टैलेंट कम कर देती है. एज इट इज ओल्ड प्लान्स यूज करते रहते हैं, अपना टैलेंट, अपना जो क्रिएटिविटी है वो मैनेजर शो नहीं करते नए आइडियाज, नए प्लान बनाने पे, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. एज वी नो इन प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इज कलेक्टेड. Then that data is analyzed and studied by professional experts who do planning, along with the salary of those professionals. Also, there is a cost in getting data, collection of data. So, overall planning is a costly matter. A lot of expenses are incurred if proper planning is made. So, let's discuss more.
प्लानिंग इज स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज रियली बिग एंड कॉस्टली। दिखने में छोटा सा काम है बट इसकी जो प्रोसेस है और बड़ी लंबी प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। मैनेजर्स रिमेन बिजी इन कलेक्शन ऑफ डेटा। दिस डेटा इज एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। तो मैनेजर्स डेटा वगैरह कलेक्शन में बिजी रहते हैं। वो जो डेटा है फिर जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, प्लानिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं उस डेटा को। अलोंग विद सैलरी ऑफ दीज एक्सपर्ट्स कलेक्शन ऑफ डेटा आल्सो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। तो उनकी सैलरी तो देनी पड़ती है जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हम प्लानिंग करने के लिए बुलाते हैं। साथ में जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं उसमें भी खर्चा आता है। सो प्लानिंग इज ए कॉस्टली मैटर। तो ये ओवरऑल जो है कॉस्टली मैटर है। प्लानिंग में ज्यादा खर्चा आता है, कॉस्टली पड़ती है। एंड फिफ्थ पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एज वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज कलेक्टेड, देन that data is studied or evaluated, then from the available data or available alternatives, the best alternatives is selected. All these need a lot of time. So overall planning is a time consuming process. पहले आप अल्टरनेट वगैरह ढूंढोगे, क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, फिर उनको इवेल्युएट करोगे अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव के। फिर इवेल्युएट करके आप देखोगे उनमें कौन सा बेस्ट है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो यहाँ तक बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर कोई प्रॉम्प्ट डिसीजन की जरूरत हो, तुरंत डिसीजन की जरूरत हो, तो मैनेजर्स को प्लानिंग को अवॉइड करना चाहिए। तब प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तुरंत अगर डिसीजन की जरूरत है तो कोई प्रॉफिट के चांस हमारे हाथ से निकल सकते हैं अगर हम प्लानिंग के भरोसे बैठे रहेंगे। तो करते हैं थोड़ा डिस्कस इसको। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट टेक्स लॉन्ग टाइम इन लिस्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, खूब टाइम लगता है इसमें। जो अल्टरनेटिव हैं उनकी लिस्ट बनाने में, उनको फिर इवेल्युएट करने में और उसमें से कोई बेस्ट वन सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। A lot of time is also needed to develop planning premises. जो फ्यूचर के रिगार्डिंग एजम्पशंस वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें भी काफी टाइम लगता है। जो मैनेजर्स अपनी एजम्पशंस डेवलप करते हैं उनमें। ड्यू टू ऑल दिस एक्शन गेट्स डिलेड। तो ये सब सारी फॉर्मेलिटी करने में जो काम है वो देरी हो सकती है उसमें किसी में भी। इफ देयर इज नीड फॉर इमीडिएट डिसीजन एंड मैनेजर शुड अवॉइड प्लानिंग। तो अगर कोई इमीडिएट डिसीजन की जरूरत है तो प्लानिंग से बचना चाहिए, प्लानिंग फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी करने में डिले होगी, देरी होगी और वो प्रॉम्प्ट डिसीजन की जरूरत है तो वो दिक्कत आ जाएगी। फिर चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स में स्लिप अवे इफ मैनेजर्स वेट फॉर प्लानिंग। तो कोई प्रॉफिट कमाने का कोई चांस है वो हाथों से निकल सकता है अगर हम यानी कि मैनेजर प्लानिंग के भरोसे बैठे रहेंगे। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रॉम्प्ट डिसीजन के टाइम पे प्लानिंग को अवॉइड करना चाहिए। Sixth point of limitation is planning does not give guarantee of success. So we can say planning does not guarantee success. Even after doing planning very carefully, plan may fail because planning works in dynamic environment. Plans are made in dynamic environment. Environment may change at any point of time. So planning may fail due to changing of environment. And secondly, managers sometimes think that if some plan have worked successfully in past, then it will work successfully in future also. This type of false sense is there in the mind of managers. Due to that also planning failed. So let's discuss it more. Planning does not give guarantee of success. Plan may fail due to changes in business environment. Planning कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद भी फेल हो सकते हैं, फेलर हाथ लग सकती है। प्लान में फेल ड्यू टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजेस के कारण प्लान में फेल हो सकता है, कोई गारंटी का प्रूफ नहीं है प्लानिंग। मैनेजर्स समटाइम think that if plan has worked successfully in past,
देन इट विल ऑल्सो ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर। कई बार फॉल्स सेंस वो अपना लेते हैं, उनके माइंड में बात बैठ जाती है कि किसी प्लानिंग ने पास्ट में सक्सेसफुली प्रेजेंट किया है, वर्क किया है, तो फ्यूचर में भी वो जरूर सक्सेस देगा। तो ये जो सेंस है, फॉल्स सेंस है, इसके कारण भी जो प्लानिंग है फेल हो जाती है। दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लीड टू फेलियर ऑफ प्लान। तो सीधी सी बात है कि प्लानिंग कोई गारंटी का प्रूफ नहीं है। प्लानिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में अप्लाई होती है, कोई भी चेंज होने के कारण फेल हो सकती है, या मैनेजर एज इट इज प्लान को अप्लाई कर दे, कोई चेंज वगैरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें ना करे तो भी प्लान फेल होगा। तो प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है, ये कमी होगी प्लानिंग की। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। एज वी नो बिफोर डूइंग प्लानिंग a lot of assumptions are made by managers. Data is collected, then assumptions regarding future is made, and that assumptions may not be 100% correct. That may be wrong according to prevailing situation, according to current situation. So planning involves lack of proper accuracy. Let's discuss it more. Planning is concerned with future and future is always uncertain. Planning future से related है, future में apply करते हैं कोई भी plan बना के, और future है हमें पता है uncertain है, कोई भी change हो सकता है उसमें कभी भी। In planning many assumptions are made. तो developing premises वाले करते टाइम मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग अपनी जब assumptions बनाते हैं, कुछ भी अंदाजा लगाते हैं, तो वो 100% accurate हो ऐसा नहीं है। In planning, many assumptions are made, but these assumptions are not 100% accurate. For example, if plan was made assuming that there will be 6%, कोई भी डेटा ले सकते हैं आप, 6 नहीं जरूरी नहीं है कोई भी, तो सपोज मैनेजर्स ने अज्यूम किया कि जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो 6% राइज रहेगा उसमें इन्फ्लेशन रेट में, बट जब प्लान बना के इम्प्लीमेंट किया गया तो जो इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्जांपल 8% हो गई। तो प्लानिंग एक्यूरेसी की कमी है वहां पे, जो हमने फोरकास्ट किया 6 का किया था, बट एक्चुअल में कुछ और। ऐसे टैक्स पॉलिसी वगैरह कोई ले सकते हैं, टैक्स पॉलिसी में सपोज कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि 10% टैक्स लग रहा है, तो वो 12% इंक्रीज होने की किसी ने फोरकास्ट किया हो, वो हो जाए 15%। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे बना के लिखा जा सकता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्रॉपर हम एक्यूरेट कर फोरकास्टिंग कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। So all these limitations we have covered. Thank you.